So students, I hope you all are doing well, and this is the video explanation of class 9th English book Moment, lesson number 2, The Adventures of Toto. Students, here Toto is a pet monkey and adventures means act of bravery, साहसिक कारनामे. So without any further ado, let's go through this chapter. Start करते हैं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The narrator's grandfather here, students, who had bought Toto, the pet monkey, from a Tonga driver. Tonga driver is type of a local vehicle जिसपे with the help of the horse the two-wheeler cart has been carried out, जिसको खींचा जाता है, pulled out for the sum of 5 rupees. टोंगा ड्राइवर जो था उसे 5 रुपये में टोटो को परचेस करते हैं. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करते थे कि जो लिटिल रेड मंकी टोटो को बांध रखा था किसे, एक फीडिंग ट्रो से. फीडिंग मीन्स खाने वाला, ट्रो मीन्स अ बाउल, वी कैन से दैट अ बाउल फॉर द एनिमल्स. And the monkey looked so out of a place there that, and when grandfather saw Toto with the Tonga driver, then he thought that the monkey looked so out of the place. He was totally confused. He was not enjoying to be with that Tonga driver. Grandfather को लगा कि जो टोटो है वो बिल्कुल भी enjoy, उसको अच्छा नहीं लग रहा है टोंगा ड्राइवर के साथ. Grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So the grandfather of the narrator decided that he would bought that Toto and then he would include him in the private zoo. उसको private zoo, उनका एक private zoo था अपना, ओके, चिड़ियाघर जो उन्होंने बना रखा था दादाजी ने. He was fond of rearing the pet and the other animals as a pet animals in his private zoo. So Toto was a pretty monkey. He is a very pretty good monkey. His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep-set eyebrows. And his eyes were very bright. उसकी आंखें बहुत चमकती थी. And mischief beneath deep-set eyebrows. बदमाश थी बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बदमाश है. एंड जो उसकी आईब्रोज थी वो काफ़ी गहरी थी, ओके. एंड his teeth which were a pearly white, and the teeth of Toto was very pearly white, मोती जैसे बिल्कुल सफ़ेद, were very often displayed in a smile that frightened the light of an early Anglo-Indian ladies. वो कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्प्ले एक बार किया था कि एक बार एक औरत जो थी एल्डरली, एक बुजुर्ग इंडियन लेडीज़ थी, एंग्लो इंडियंस लेडी, उनको क्या कहता है, डरा दिया था. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके जो हाथ थे वो पूरे सूख गए थे. ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उनको सन में ही रखा गया. सूर्य की जो सनलाइट है उसके हाथों पे हमेशा पड़ी है, दैट्स वाई उसकी जो हाथ है बहुत सूखे लग रहे थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत चालबाज थी, बिल्कुल दे वर वेरी क्विक, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी टेल थी वो उसके लुक्स को बहुत अच्छा कर दे रही थी, गुड बना दे रही थी. ग्रैंडफादर ने बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड्स लुक. ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि अगर किसी के पास भी टेल है तो उसके जो लुक्स को वो बढ़ा देता है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, एंड ऑल्सो दैट इट एक्ट एज अ थर्ड हैंड, हाथ का काम करता है. He could use it to hang from a branches. With the help of the tail, a monkey could hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might of the reach of his hand. And as well as monkeys' tails can be easily helpful for scooping up any delicacy. कोई भी सामान जो उसके हाथ के पहुँच से दूर है तो that time tails are very very helpful, students. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. जो ग्रैंड मदर थी नरेटर की, वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी टेंस्ड हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी. वेन एवर ग्रैंड फादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, कभी भी जब ग्रैंड फादर नए बर्ड और एनिमल लाते थे, देन द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज पर्टिकुलरली गुड मूड. So it was decided between the grandfather and the narrator that the Toto's presence should be kept a secret. तो टोटो का घर आने उसको सीक्रेट रखा जाएगा, रहस्य रखा जाएगा तब तक कि ग्रैंड मदर का किसी दिन अच्छा मूड नहीं होता, मतलब अच्छे मूड में होंगे तब उसके बारे में बताया जाएगा. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन अ बेडरूम वॉल. सो उन्होंने क्या करा ग्रैंडफादर और नरेटर ने कि एक उनके बेडरूम की दीवार पे एक अलमीरा थी अंदर से, तो उसमें उन्होंने सोचा कि उस बेडरूम वॉल पे उसको रख देते हैं. एंड वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पर उसको बड़े ही ध्यान से बांधा गया था. सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल.
तो इसकी वजह से क्या करा कि एक खूंटी थी दीवार पे लगी हुई, पैक मीन्स स्टूडेंट खूंटी, तो उस पर उसको बांध दिया गया था, उसके जो रोप होता है उसको उससे बांध दिया गया था, जिससे कि जो टोटो है वो जाए ना। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, and after few hours, when grandfather and the narrator came to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out naked as brick and plaster. When they reached at that place, they were very surprised. They found that the wall which was covered with some ornamental paper, wall जिसको कुछ सजावटी पेपर से कवर किया गया था, वहाँ पर उसने जो टोटो ने अपने आप को वहाँ से आज़ाद करने के लिए, निकलने के लिए वहाँ पर कुछ चीज़ें खींची थी, तो जिससे कि जो प्लास्टर था, जो ब्रिक था, वो दिखने लग गया था, ख़राब हो गया था वो जगह। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, तो जो पैग था, जो खूंटी थी, वो जो जिस दीवार पे लगा हुआ था उसको तेज से खींच के उसने निकाल दिया था। हेयर रैंच्ड मीन्स स्टूडेंट झटके से खींचना, ओके। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड, एंड एट दैट प्लेस वेयर द टोटो वॉज टाइड अप देयर वॉज द ब्लेजर ऑफ द नरेटर। स्कूल के जो नरेटर कहानी सुना रहे उनकी स्कूल की ब्लेजर भी थी, तो उसको क्या करा था कि उसने पकड़ के फाड़ दिया था टुकड़ों में, उसने मतलब उसको अपने दांतों से नोच दिया था। आई वंडर दैट ग्रैंड अंडर वट ग्रैंड मदर वुड से, ये सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ये ग्रैंड फादर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज विद टोटो's प्रेजेंस, उनको तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत उनको बढ़िया लगा टोटोस की परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर, ग्रैंड फादर ने कहा कि ही इज़ क्लेवर, चालाक है। एंड गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड टाई द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और उन्होंने कहा कि अगर समय दिया जाएगा तो डेफिनेटली ही कुड टाई द टॉर्न पीसेस, ये जो टुकड़े हैं, जो ब्लेजर्स के टुकड़े इसने काटे हैं तुम्हारे ब्लेजर्स को, इसको रोप में कन्वर्ट करके और एक दिन ये विंडो से भी बाहर चला जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक ग्रैंड जो टोटो है उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, इट वॉज अ कैप्ट सीक्रेट इन द हाउस। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सो नाउ द फ्रॉम दैट क्लोजेट टू द नाउ टोटो वॉज ट्रांसफर टू अ बिग केज। अब वो अलमीरा से टोटो को कहाँ रखा गया, एक बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में, जो नौकर का जो रूम्स थे वहाँ पे, जहाँ पे पेट एनिमल्स जो थे बहुत सारे थे जिन्होंने ग्रैंडफादर ने रखे थे। कौन कौन से पेट एनिमल्स रखे थे, तो यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के जोड़े थे। अ टेम स्क्वेरल, गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, एक बकरी भी। But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. लेकिन at that night when Toto was tied at that place, the servant quarter, at that night he made a lots of disturbance, and none of that creature, none of the any pet animal at that place in the servant quarter unable to sleep at that night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him alone. So when it disturbed everyone, when Toto disturbed every pet animal in the servant quarters. So the next morning, grandfather decided that he had to leave to नेक्स्ट डू टू सहारनपुर। सहारनपुर जा रहा था, पेंशन वहाँ मिलती थी सहारनपुर, देहरादून से सहारनपुर। तो उन्होंने कहा कि अपने साथ टोटो को भी लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेकिन नरेटर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप में नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड्स, लेकिन उन्होंने बाद में इसके बारे में मुझे बताया। क्या बताया? अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। उन्होंने क्या करा कि टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवस बैग लिया, मजबूत बैग, एंड दिस विथ सम स्ट्रॉ ऑफ द बॉटम बिकेम इज न्यू अबॉर्ड। और उसमें कुछ उन्होंने स्ट्रॉ लकड़ियाँ डाली उस कैनवस बैग में, जो कि टोटो का नया घर हो गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया था तो there was no chance of getting out from that bag for Toto, and Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite as with the throw. So with the help of his hand, Toto could not get through the opening. बाहर नहीं निकल सकता था, और जो कैनवास जो बैग था जिससे बना हुआ था मटेरियल से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि वो अपने बाइट नहीं कर सकता था। ओके, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll on the floor and occasionally jump into the air. उसका ये था कि सिर्फ अगर वो बैग में रोल कर इधर उधर लुढ़कियाँ मारे तो जिससे कि वो बैग नीचे गिरे और फिर उससे वो बाहर आराम से निकल जाए। ओके, and then exhibition that attracted a curious crowd of onlooker on the देहरादून देहरा रेलवे स्टेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर एग्जीबिशन एक दृश्य हो जाता है जिससे कि जो देहरादून रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग देखेंगे उसे। सो
टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो क्या करता है कि जब तक सहारनपुर तक पहुँचता है तब तक बैग में रहता है। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। लेकिन जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे ग्रैंडफादर उतरते हैं और उतरने के बाद से अपना टिकट जो होता है वो टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं रेलवे टर्नस्टाइल पर। टर्नस्टाइल इज़ अ प्लेस, फॉर एग्जांपल निकलने का एक गेट होता है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल वॉल होता है, फिर उसके बगल में ऐसे ऐसे करके ये बना होता है। तो क्या होता है कि उसमें एक ही बार में एक ही पर्सन बाहर निकल सकता है, वो घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। तो यहीं पर एक टीटी खड़े हैं तो वो उनसे टिकट मांगते हैं सीक्वेंस वाइज में। तो उसमें जब टिकट मांग रहे हैं तब तक क्या होता है कि वो जो बैग कैनवस बैग में टोटो है वो अपना सिर बाइक से बाहर निकालते हुए और कलेक्टर की तरफ हंसता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो जो बेचारा टिकट कलेक्टर था वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी बुद्धि तुरंत काम करे, उसने ज़्यादा घबराया नहीं और गांधी जो ग्रैंडफादर थे उनको भी अनॉयड फील नहीं करा। उसने कहा सर आपके पास एक डॉग है और आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा टिकट। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog. अब ग्रैंडफादर टोटो को बैग से निकालते हैं और ये दिखाते हैं कि जो मंकी है वो डॉग नहीं है और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि जो 4 पैरों वाला हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मंकी तो बेसिकली 2 legs एंड 2 hands होते हैं। क्वाड्रप्ट मतलब 4 legs। ओके स्टूडेंट, Toto was classified a dog by the ticket collector, but the ticket collector classified Toto as a dog and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो उसका जो किराया लगा कितना लगा 3 rupees. Then grandfather just to get his own bag took from his pocket or our pet tortoise. तब तक ग्रैंडफादर ने अपने पॉकेट से एक टोटॉइस, अपना जो पालतू टोटॉइस था उसको निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब इस टोटॉइस के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा जब तुम सारे जानवरों के लिए कुछ ले रहे हो। टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटॉइस। टिकट कलेक्टर बड़े ध्यान से टोटॉइस को देखता है, प्रोडेड इट विथ हिज 4 fingers और अपने 4 fingers से उसको छूता है एंड गिव ग्रैंडफादर अ प्लीजेंट एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। कहता है कि देखता है खुश होते हुए, कहता है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज फॉर दैट टोटॉइस एंड इट इज सो दैट इज वाई इट इज नॉट अ डॉग, सो ही इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनी अमाउंट फॉर इट। ओके, when Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion in the family donkey Nana. Then Toto was finally, when the grandmother of the narrator accepted Toto, then he was given a home in the stable. अस्तबल में उसको एक रूम जगह दिया गया। where he had a companion the family donkey Nana, जहाँ पर कौन रहता था, जो फैमिली का जो डोंकी था नाना वो रहता था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, उस अस्तबल में जहाँ पर नाना डोंकी रहती थी वहाँ पर ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो रात को ग्रैंडफादर गए देखने के लिए कि टोटो ठीक है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइड टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। लेकिन जैसे ही व्हेन द नरेटर ग्रैंडफादर रीच दैट प्लेस ही फाउंड दैट नाना विदाउट एपरेंट कॉज, विदाउट एनी रीजन, पुलिंग हट एर हॉल्टर, अपनी लगाम को खींच रही थी, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि जो चारे का जो बंडल था उससे अपने सिर को बहुत दूर करने की कोशिश कर रही थी जो नाना डोंकी थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हिज हंचेज एंड ही जॉग बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। तो ग्रैंडफादर ने क्या करा कि जो उसके पीठ पर, जो नाना डोंकी था उसके पीठ पर उन्होंने स्लैप किया एंड ही जॉग बैक, और फिर सी जॉग बैक वो पीछे हटी एंड ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और अपने साथ साथ टोटो को भी ड्रैग करी थी। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद द शार्प लिटिल टीथ। क्या करा था कि टोटो ने अपने शार्प टीथ से नाना डोंकी को के कान पकड़े हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नैना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो के लिए विंटर में सबसे अच्छा प्लेस होता था, जगह चीज़ होती थी जब ग्रैंड मदर उसको लार्ज बाउल वार्म वाटर, गर्म पानी का नहाने के लिए देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, बड़ी चालाकी से अपने हैंड से टेम्परेचर चेक करता था एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर बाउल में एंटर करता था। फर्स्ट 1 फुट पहला पैर, फिर दूसरा, एज ही हैड बीन डूइंग एंटिल ही वॉज द वाटर टू हिज नेक, जब तक ऐसे धीरे धीरे करता रहता था जब तक कि वो पानी उसके गर्दन तक नहीं पहुँच जाता था।
वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट। जैसे ही पूरा कंफर्टेबल हो जाता था, आराम हो जाता था, तब अपने अपने हाथ में सोप लेता था, ठीक है ना। फिर सोप को क्या करता था, अपने पैरों पर, हाथों पे लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे अपनी बॉडी पे रब करता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जैसे ही पानी ठंडा होता था वो सीधे पानी से बाहर निकलता था और किचन फायर के पास चला जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone would laugh at him during his performance, total feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। और अगर कोई इस प्रोसेस में हंस देता था तो अगली बार टोटो नहाने नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो अपने आप को जिंदा ही बॉयल कर देने वाला था, जला देने वाला था। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन पुट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लेड। एक लार्ज किचन कैटल चाय बनाने के लिए एक फायर बॉल पे रखा गया था। टोटो ने क्या करा कि उसमें क्या करा, उसको कुछ करने को नहीं था, तो उसने क्या करा कि उस लिड को, जो कैटल की जो ढक्कन था, उसको हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। और देखा कि जो पानी जो कैटल का है वो वार्म है, गर्म है, नहाने के लिए ठीक है। ही गॉट इन इट, उसके अंदर चला गया। विथ हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसका जो हेड था वो ओपन कैटल का जो ढक्कन था, माउथ था, उससे बाहर निकला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो सही था। उसको लगा कि बॉयल वाटर, उसको ही नहीं पता था कि वो बॉइलिंग है, वो अभी भी बॉयल हो रहा है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि वो पानी बॉयल होना शुरू नहीं हुआ तब तक तो ठीक था। टोटो देन रेड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर किया, लेकिन देखा कि बाहर ठंडा है, फिर से बैठ गया। ही कॉन्टिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक कूद रहा था, कुछ समय के लिए उसी कैटल के अंदर। ओके, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि ग्रैंड मदर आई और उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, सीधे उसको कैटल से बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू द मिस्chief, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर एक ब्रेन में बदमाशी का कोई पार्ट होगा तो डेफिनेटली टोटो में वो पार्ट बड़ा होगा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू द पीसेज, हमेशा पीसेस को टुकड़े में तोड़ देता था, चीज़ों को टुकड़े में तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, कभी भी अगर मेरी आंट्स उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। वो पूरा एफर्ट करता था कि कैसे भी उस ड्रेस को पाए और साथ ही साथ उसको छेद कर दे, उसको ख़राब कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन की बात है, लंच टाइम के टाइम पे, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बड़े बर्तन पे पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जैसे ही हम रूम पे पहुंचे तो हमने देखा कि टोटो पुलाव को ईट कर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। ये देखते हुए ग्रैंड मदर स्क्रीम करी, चिल्लाई, एंड इसी टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। एंड देन व्हेन द वन ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर लिसन द वॉइस ऑफ द ग्रैंड मदर, देन सी जस्ट walked towards that voice and eventually Toto threw the water to the aunt face also। aunt के भी फेस पर वो टोटो ने पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulav and made his exit through the window। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने क्या करा कि पुलाव वाले बर्तन को निकाला, उठाया और विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। बाहर निकाल के देखा तो कटहल के पेड़ पर की टहनियों पर वो बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, वो बर्तन अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून वो वहीं था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे राइस को ईट कर रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, पूरा सोच लिया था कि पूरे राइस को वो ईट करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडफादर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन थ्रू द ट्री एंड चैटर्ड विद द डिलाइट 100 पीसेस। और जैसे ही ग्रैंडफादर ने उसके ऊपर चिल्लाया, नीचे से चिल्लाया वो, तब तक क्या हुआ कि उसने ऊपर से उस बर्तन को फेंक दिया ट्री से। और वो क्या हुआ कि जो बर्तन नीचे गिरा तो 100 पीसेस में वो टूट गया। एंड बाय सीइंग दैट सीन टोटो वॉज वेरी हैप्पी, टोटो बहुत खुश हुआ। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप फॉर लॉन्ग। ये जाहिर हो चुका था कि टोटो वैसा पेट नहीं है जिसको लंबे समय तक रखा जा सकता। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लॉसेस कर रहा है, डिशेस को ख़राब कर रहा है, क्लोथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर, सब चीज़ को। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने दोबारा उस टोंगा ड्राइवर को पाया एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको टोटो को दोबारा बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में।
दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इज़ अ वेरी वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल, ये स्टूडेंट वीडियोज इतनी ही है। सो व्हाट इज द एडवेंचर, टोटो कौन था स्टूडेंट्स, अ स्मॉल पेट मॉन्की था, एंड हाउ ही क्रिएटेड अ मिस्chief इन द हाउस, how he disturbed all the family members, and how initially grandfather tried to save Toto, tried to keep Toto at his home, but eventually when he made lots of losses to the house and to the other things of the house, so grandfather decided to sell him again to the Tonga driver students. So watch this video 2 or 3 times. If you have any doubt, you can ask to the comment section, and in the next video, in the next class, I will try to put some question answer through that. Okay students, so thanks for watching and God bless you all.